Assalamu alaikum, Sarah. Thank you so much for joining the session. Hello, Assalamualaikum, Umair. Thank you so much for having me. It's my pleasure. It's a very long-awaited thing because I really wanted to do some professional who is from this training industry thing because we have a lot of sessions with HR, we have a lot of sessions with different professionals and try to understand कि वो उस तरीके से किस तरीके से उनकी मार्केट चल रही होती है, किस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं. And then the overall idea of having these sessions is to get as much knowledge from industry professional, like how people are doing because we have different debates like after 2020, this corona thing, everything goes digital. And then we have a debate of how Gen Zs versus millennials. And then there's a lot of different things going around in the market. So before we Yeah. start, I'm pretty much sure a lot of people know you on LinkedIn and other platforms. But just for the audience, if you can introduce yourself and then we start the session. All right. So I'm Sarah Mashood, as Umair said, and I'm currently leading operations and relationships at Torque, which is like Pakistan's leading training and development outlet. I'm also hosting shows like Celebrating Sweet Success at the Institute of Business Management because I'm a committee member at their association. So that's another. And at the core, I'm a conversation enthusiast, just like you. So I try to create spaces where people feel very comfortable and they feel seen and they feel inspired. So that's what I'm all about. Fair enough. I think that's a very good thing because you throughout your overall life, I see that Sarah Mashhoor is also trying to explain things ke bhai theek hai, how people are doing things, how we can grow, learning and development just feels आप relate करते हो, ठीक है. So as far as let's start off कि when you have done your graduation, ठीक है. So there are a lot of things. I'm pretty much sure when you graduated till now, things change very differently. Now the working environment, the structure and everything change. So just for the audience, tell me what is this training market or training work look like because you were in the industry for more than a decade now and you know every in and out and you know everything about it. I see, yes, on the MNC side, people know that there are multiple trainings going around in Pakistan, but initially, Hmm. अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करूं तो not everyone knows about it. ठीक है, जो companies होती हैं, not everyone doing those training sessions. So yeah. So how this training market going moving forward? How you see things? पहले कैसी थी? From where did you started? How everything going? Just to understand the market of this training industries. So I hear two questions here. One is about when did I get to know about training and how I got into it. And the other is what kind of training market we're seeing right now. At the same time, okay, so I'll start with the first one. This is 2003 and 4, and there was this girl who just come to our college. That time I was in college, and this is not university, I'm talking about intermediate. And there came a girl on the podium, and she was speaking with lots and lots of fluency and confidence. And I was like, who is this, and what has she done? So she just recently attended a 6-day residential conference and she was sharing her information about it and the experiences that she got to experience. And I was really excited. I was so excited. So I was like, I really want to do this and I want to see what changes I get to see in myself. Also, because I wanted to go up to the same podium and tell everybody that I did it. Because otherwise, मैं तो first आने की वजह से वहाँ सिर्फ certificate लेने के लिए चली जाती थी. So that was the first time. I got into the conference. I was able to gather sponsorships for it, which was a lot of hard work, but we got in. And that is where I actually found out about what public speakers are, what trainers are, who facilitators are, what is it that they do. Like before, when you're in college, you barely know about it, right? So that's the first time. How I joined it is I was working since grade 8 and I was teaching and I was giving tuitions and I was doing carnivals and so much more. But when I was at IOBM, the Institute of Business Management, that's when I started doing events and I called in Omer, who was at that time just starting out as a trainer, as a corporate trainer. And when I called him up for one event, and the events kept coming in, he kept coming to the institute, and he saw my work, and I saw his work, and I think we decided. I mean, he just offered the job to me, and while there were a lot of jobs offered to me at that time because I was also in my final year or something, I chose to be part of this because I saw a lot of events happening. While events
did give me a high, the audience sitting at the conferences also gave me a high. The expressions that I would see after a training session on those faces, it would turn me on. I was really happy about it. So that's when I joined this. As for the training market, if you ask me, there was a time that there was a dip in it because of COVID, but post COVID, जो budgets चल रहे थे ना, वो अब वापस आ गए हैं. What's happening is that there is a more need of training and learning sessions that have now begun. And there are people not looking at one single session, but they're actually looking at journeys now. कि भाई आप ऐसा नहीं करें कि एक workshop कराएं और फिर बस खत्म, but they're actually looking for a journey based training intervention जो उनके corporate employees के लिए कराई जा सके. So that's what I see, and I see a lot of investment there. Whereas when you talk about budgets and everything, clients are still very hesitant and they do not want to pay as much because वो जो है वो per day और per cost के हिसाब से जो है वो देख रहे होते हैं और हम जो है impact के हिसाब से हर चीज़ को measure कर रहे होते हैं. तो जहाँ पे वो कहते हैं कभी-कभार कि अच्छा क्योंकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में डे वाइज़ चार्ज होता है. It's not for 1 घंटे का या 2 घंटे का. So when sometimes clients come to me and they say बस 2 घंटे के charges, बस 2 घंटे के charges. So I'm like, there is no 2 घंटे के charges. It's when you are assigning a trainer for a day to one client, we can't take any other. So there is no कि 2 घंटा आपके साथ लगा के हम किसी और कंपनी के पास चले जाएंगे. That doesn't happen there. So yeah, there is hesitation, but price sensitivity is an issue. Also, there are two kinds. There's freelancers, जो कि trainers का अपना है, जो individual trainers अपनी services दे रहे होते हैं, and then there are training outlets जो कि बहुत सारे trainers को जो है वो एक tribe बना के, जैसे TORT ने एक group of trainers रखा हुआ है, तो एक organization है बाकायदा जो invest करती है इस तरह के trainers में. तो उसकी वजह से भी I think there's a lot of saturation and the price points they keep going down and up and all of it Fair enough. at all times. ठीक है, अब the main question as a layman, ठीक है, why we need this learning and development sessions, ठीक है. I'm pretty much sure क्योंकि आप मुझे लगता है आप बिल्कुल सही person होगे जिससे मैं पूछूं because your overall company business is this, ठीक है. So you know the real answer, ठीक है. Why people wants to have these training sessions in their companies around Pakistan, around the world? Why they usually need that? I'll give you one example because I if I get into a lot, then it's gonna go really far and wide. So एक चीज़ है resistance to change, right? चेंज आने में बहुत मतलब लोगों को मसला होता है. हम भी अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए होते हैं, हमें हमें चेंज आते ही बहुत डर लग रहा होता है. एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी अगर एंटरप्रेन्योरशिप की जाने भी जाना चाहे तो उसको हज़ार दफ़ा सोचना पड़ता है और फिर लोग क्या कहेंगे एंड ऑल ऑफ इट, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेनिंग, व्हाट इट डज़ इज़ इट चेंजेस माइंडसेट्स एंड वो जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है जो आपके एक पढ़ा लिखा ट्रेनर, सीखा हुआ, एक्सपीरियंस हुआ हुआ आपके लिए एक आउटलाइन डिज़ाइन करता है, एक प्रोग्राम, एक डे बाकायदा डिज़ाइन करता है, टू चेंज योर माइंडसेट थ्रू डिफरेंट टूल्स और लर्निंग मॉड्यूल्स इम्पार्ट करता है. उससे देयर आर अ लॉट ऑफ और ज़ाहिर-सी बात है, इट डज़न्ट हैपन विदाउट द कंपनीज़ co-creation or co-designing with us. We're sitting with the company individuals, the team, the client team, and we're deciding and discussing what is it that they need change in, what is it that needs to be changed, and we work through it. And then the facilitator gives away their modules and all of it, जिसके through ये काम होता है. Tools का बताते हैं, activities कराते हैं, बहुत सारे इंटरवेंशंस होती हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है और वो उसी दिन के लिए लिमिटेड नहीं होता. दिस लाइक आई मेंशन कि जर्नीज अब उस पे काम हो रहा है, तो लिटिल लर्निंग बाइट्स भी आ रहे होते हैं जिसके ऊपर द लर्निंग इन्फोर्समेंट हो रही होती है. और जो भी चेंज एक कंपनी, एक क्लाइंट चाह रहा होता है अपने उन एम्प्लॉयज में, अपनी उस टीम में, वो एबल टू ब्रिंग दैट. एंड द रियल रीजन, द रियल पिक्चर behind the whole scene is that the company wants its employees to understand what is it that is coming and how is it that they can face it.
ठीक है, So मतलब so इट्स बेसिकली व्हाट आई पर्सनली थिंक इज, लोग लोग अगर मुझसे पूछते हैं, अगर पहले मेरा परसेप्शन था, तो मैं कहता है यार व्हाई वी आर हैविंग दिस मल्टीपल ट्रेनिंग सेक्शन, और क्यों बार बार जाना है भाई, एक बंदे एक कर लिया तो अब अगली बार क्यों। एंड देन आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। सो यू कैन गो टू अ ट्रेनिंग सेशन, गेट मोटिवेटेड, बट like going to a multiple session, you understand different things. It's not only about कि अगर फॉर एग्जाम्पल उमेर हो गया, जैन हो गया, कोई भी दूसरे ट्रेनर्स हैं, वो हर सेशन उनका एक बारे में नहीं होता। मे बी हर कंपनी के अंदर कोई अलग अलग चीज़ है जिसके बारे में उनको बात करनी है, एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू फोकस ऑन दैट। मे बी सम सेशन इज from different perspective, some session is for different perspective, and I think this is why companies and MNCs really want those training sessions to be done in their company. The sec I just wanna add a little to this, which is that अभी मैंने आपको सिर्फ एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी थी, जहाँ पे मुझे लगता था और मुझे बहुत मैंने नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है ये वाला चेंज लोगों में। जो मैंने चेंज के ऊपर रेजिस्टेंस की बात की थी, राइट? देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। द मोस्ट बेसिक वन इज़ कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन, यानी कि 10 बंदों की टीम और आपस में बातचीत नहीं है या आपस में मिलकर नहीं कर सकते काम, या डिफरेंट फंक्शंस हैं, मार्केटिंग का है, एचआर का है, एससीएम का है, सप्लाई चेन का है, बहुत सारे हैं, लेकिन मिलकर साथ काम नहीं करना है, एक-दूसरे को ब्लेम करना है, तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से उन टीम्स को बताई जाए कि उनको बुरा भी नहीं लगे और उनको अच्छाई भी नज़र आए उस काम में, मिलकर काम करने में। You get it? So that's the whole idea. So once you're able to understand that, and we have seen change coming in, Umair, the funny part is, and it's so, I mean, I have seen the change myself. I've witnessed it. I'm not a trainer. I look at the audience, like I said, I get my high from there. But if there's a session going on, you see just a few individuals from the lot, 2 से 3 ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये क्या, हम कहाँ आ गए हैं? ये क्या है? मतलब क्यों कंपनी ने फिर से बेच दिया है हमें, राइट? And by the end of the sessions, they're the ones who are loving it more than ever, you know? So उनको देख के हमें इतनी खुशी होती है। It's a turnaround really. फेयर इनफ, क्योंकि क्योंकि यूजली हमारा ना थोड़ा जजमेंटल क्राइटेरिया होता है। मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि बैक इन 2018 2019 अगर मैं बात करूं, तो आई हैव बीन इनटू फ्यू सेशन, जिसकी वजह से मैं जैन भाई हो गए, उमैर भाई हो गए, इन लोगों को जानता हूँ। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लोगों को ना जज करना है चीज़ में, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट यूजली पीपल डू इन कंपनीज, बिकॉज हुँ। a lot of time people see things on a very different perspective। कोई भी बंदा देखता है यार ये कितनी बड़ी कंपनी है, वो कंपनी इतनी बड़ी इसलिए क्योंकि उसमें लोग साथ मिलके काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका आपकी हर हायरिंग दूसरी हायरिंग के साथ बिल्कुल सेट चल रही है, और इट्स नॉट ओनली अबाउट ओनली अ कंपनी, इट्स अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये पता चलता है, सीखने को मिलता है, आप दूसरे लोगों से बात बात कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक इन ट्रेनिंग सेशन इज मोर लाइकली अ ट्रेनर इज teaching everything on a same scale, whether the second person next to me is a manager, or whether a person next to me is an intern, Spectrum, हाँ। एंड देन यू नीड Yeah. टू फिर आपको पता चलता है ओके फाइन, ठीक है, बात करने का, समझाने का, साथ काम करने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं उसको हायरार्की से देखूं। देयर इज अनदर वे टू डू दिस। Yeah. That goes to another question, another topic that I want to discuss is, nowadays we are seeing a lot of individual freelancers trainers, ठीक है। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से बता सकोगे, क्योंकि टॉर्क इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं कंपनी के साथ, वो आप पे ट्रस्ट करता है कि जो भी सेशन होगा, जो भी गेस्ट स्पीकर्स आएंगे, जो भी ट्रेनर्स आएंगे, वो एट द एंड कोई ना कोई अच्छी चीज सिखा के जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। So as a freelancer, as a person who wants to excel in the career pathway of this training thing, what do you think, what should be the right pointers? अगर मैं एक चेकलिस्ट बनाऊं तो सारा कहें कि यार मैं एक बंदे के अंदर ये 2-3 चीजें देखती हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यार ही इज अ गुड ट्रेनर, और ही इज नॉट दैट गुड ट्रेनर, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना एवरीवन इज कम टू यू, और क्योंकि आपके पास कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त क्राइटेरिया है, लेकिन if I put it out, people will be put out of their jobs. No, I'm just kidding. Um, so I'm very judgmental, by the way. Okay, and when it comes to training, and when you are a trainer, I expect a lot of things of you and from you. This is how it works. I have seen trainers. I've seen these you trainers that you've just mentioned. एक तो जैन का नाम आपने लिया, फिर उमैर का नाम लिया आपने। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। So I've seen them from the start. So yeah, but when you talk about trainers, let's go general so that
मेरे ऊपर मेरी बात नहीं लगे नहीं, सेकंड. it's a that So this is not about Zain. This is not about Umair. This is like this is very generic. Yeah. So I'll go about that. So when I say, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ट्रेनर्स जो हैं उनमें क्या चेकलिस्ट लाइक यू सेड वो ऐसे बॉक्सेस जिनको चेक किया वो तो फिर मैं उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ट्रेनर्स किस तरीके से जो है वो बन सकते हैं लाइक मतलब क्या तरीकेकार है ठीक है बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स गोना हेल्प विद द गाइडेंस एंड ऑल. अच्छा. So what I see is, like I said, for me, audience is the yardstick, right? For me, audience is the yardstick. I see the audience. I've seen people smiling. I have seen people मतलब क्योंकि हम लोग को कभी-कभार एक कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स में लेके जाया जाता है जो एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं और दूसरा ये कि एम्प्लॉइज़ नाराज़ भी होते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट से फॉर सम रीज़न और द अदर. तो I've seen that change and I know कि उसमें किस चीज़ की like what is it? You look at the audience's experience, reaction and you can find out. Number one is that. Number two is there are times when a question is asked from you and you're not ready for it. एक ऐसी एक ट्रेनर उठ के आ गया है, ऑडियंस बैठी हुई है हॉल में 300 बंदा है और किसी ने भी खड़े होके ये एनईडी में इन लोगों के साथ हुआ करता था बहुत मजे की चीज है. सब यूथ बैठी हुई है सामने सीट्स पे एनईडी में यूथ ट्रेनिंग सेशन वो अब कुछ कराते थे इवेंट्स वगैरह और एनईडी के बच्चे उन्हें छोड़ते नहीं थे. सो बहुत ट्रेनर्स तो वहीं पे जज किए जाते थे और हटा दिए जाते थे सो दैट वाज अनदर yardstick. But yeah, so you need to have answers, you need to have a conceptual understanding of whatever it is that you're imparting. अगर आपको वो ही नहीं पता है तो कैसे चलेगा. तीसरी बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि I don't know if I believe in this, I should, I think, but practice what you preach. जो आप सिखा रहे हैं वो आप में भी मौजूद होना चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल्सो व्हाट पीपल बिलीव इन बट आई डोंट हैव द टाइम टू नोटिस एवरीबडी एंड सी कि वो उस तरह से फॉलो करे. यानी फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज एथिक्स बहुत बड़ी सी चीज एक्चुअली बट एथिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें यूड बी लाइक यार ये खुद तो एथिकली इस तरीके के काम कर रहा है, ये तो ड्राइव भी ले रहा है, ये तो फलाना भी कर रहा है, ये तो धमाकी भी कर रहा है और वहां पे जो है सेशन में वो अल्लाह रसूल भी चल रहा है और सब कुछ इस तरीके की बातें भी होती हैं, राइट? So not pointing at anyone because I don't know if anyone does that, but लोग इस तरीके की बातें भी करते हैं because they have their own judgment criteria. So I think these are a few things that I can tell. But I think if conceptual understanding is clear, if you know what you're talking about, 360 degrees is very important. You just can't copy a trainer and then say it out loud. The third thing I would say, or the fourth thing would be uniqueness. तुम्हारी खुद की एक uniqueness है. उस पे काम करो. You can't copy somebody. It's such a fail, when even Aamir Khan comes up with Forrest Gump का कोई एक अदर एक मूवी बना के ले आता है. अब सोचो ट्रेनर वही बातें वही चाहे वो औरत हो या वो मर्द है. एक ट्रेनर को कॉपी कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं यार? अपना तरीका अपना स्टाइल लेके आओ. You'll be loved. You'll be loved for you being you. So that turns me off a little. गुड 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 पॉइंटर्स, गुड पॉइंटर्स. मैं मेरा मेन मकसद यही था क्योंकि बीइंग अ ट्रेनर इज नॉट ओनली अबाउट कि मैंने 10 स्लाइड्स बनाई हैं और मुझे वो बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, ठीक है? आई रट्टी भी. मतलब मुझे रटी भी मैं चलिए ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ट्रेनर हैज़ लाइक 5 स्लाइड्स और वो अलग-अलग 5 टॉपिक पे बात करता है और कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि एक बंदा आपकी सेम प्रेज़ेंटेशन 2 मर्तबा सुन रहा हो। पॉसिबिलिटी है, ठीक है? पॉसिबिलिटी है कि एक बंदा एक कंपनी में था, उस कंपनी में भी वो चीज़ का मसला था, फिर वो उसने कंपनी चेंज कर दी तो दूसरी कंपनी में मसला था और वो दोनों जगह एक That बंदे को happens. देख रहे हैं. That's बट understandable. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी पब्लिक प्रोफाइल वाली चीज़ होती है, आप लोगों में होता है, ठीक है? और आप जब स्टेज पर होते हैं ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको एक्ट करना है, कि मैं एक्ट ए से स्टार्ट करूँगा, एक्ट 10 खत्म होगा, मैं वापस चले आऊँगा. Yeah. आप जो बोल रहे होते हैं उसका रियल लाइफ रिज़ल्ट होता है एंड आई पर्सनली बिलीव कि बिकमिंग अ ट्रेनर इज़ मोर लाइकली ट्रेनर ये नहीं कह रहा होता कि भाई ये यही चीज़ें करनी है और मैंने भी करी हैं. इट्स अबाउट वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे रहा है, ठीक है? आपको ये चीज़ें करनी चाहिए. आप करेंगे Yeah. तो इट्स गुड फॉर यू, नहीं करेंगे तो इट्स टोटली फाइन, ठीक है? दैट गोज़ This one टू thing I'm gonna add, uh, it's not about when I say copying somebody doesn't mean copying content. I think it's amazing if you're copying content. The reason that I mean all the content that you have is from books, it's from the workshops that you attend, it's from different trainers and people speaking in public. It could be inspiration could be drawn from anywhere, right? I'm just saying if you're copying somebody else's style, like how he raises hand and how he puts his foot forward first and all of it, I think usme thodi si
आपको अपनी यूनिकनेस लेके आनी चाहिए, is my thing. Otherwise content तो जितना आप how much ever so you want to do, go ahead and do it. And आप you're right about, yeah. मतलब अगर कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट में है मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट यू जस्ट गो ऑन चैट जीपीटी आप किसी भी टॉपिक के बारे में आई थिंक चैट अब जीपीटी के अब अब राइट नाउ व्हाट आई पर्सनली बिलीव के इट्स अ वेरी थिन लाइन टू अंडरस्टैंड कि एक बंदा खुद क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सेशन इट्स नॉट अबाउट व्हाट्स ऑन द प्रेजेंटेशन इट्स अबाउट हाउ यू आर yeah, मेकिंग कनेक्शन विद पीपल yeah, deliver, ठीक है yeah. how you deliver ठीक है there are people in my experience I'm taking a session in one of my previous jobs and the person is from Singapore उसकी पूरी स्लाइड पे उसका नाम लिखा था उसने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में स्लाइड चेंज नहीं करी और उसने जो समझाना था वो समझा दिया और एट द एंड ऑफ द डे वो यही समझा के गया कि भाई ज़रूरी नहीं कि मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तभी मैं बहुत अच्छा गेस्ट स्पीकर इट्स मोर टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे ये बात बतानी थी इस तरीके से बतानी थी आप लोग अगर समझ गए तो गुड है नहीं समझे तो मैं और Yeah. कोशिश करूंगा वरना ज़रूरी नहीं हमेशा हर किसी के लिए एप्लीकेबल ठीक है सो यू एक चीज़ मुझे और जाननी यू बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ डेकेड कभी ऐसा सोचा नहीं कि यार becoming a trainer for yourself? Never. And why? I'll tell you why. So I was at YLC, this conference that's like a 6 day residential thing. And no, I think for me, wherever I am, it's a stage. मैं तो कहीं पे भी किसी को कुछ भी सुना देती हूँ। आप मुझे देखिए इन एक्शन इन रियल लाइफ, यू आर गोना बी लाइक मतलब शी डज़न्ट नीड अ स्टेज। सो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही बेचारी, मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं बेचारी ऐसी हूँ। सो नो, एंड आई आल्सो फील दैट like I said, for a trainer, you need to be informed, you need to be aware, and you need to keep up with a lot of things. I think I can do better behind the scenes. I've always been behind the scenes in this regard, and I feel जिसको आता है ना वही करे. So yeah, I've not been. I've never wanted to be one. I think I'm the only one who never wanted to be one. By the way, The main reason of asking you is this is to क्योंकि I was expecting the same answer क्योंकि आपको बहुत जल्दी आपको पता होता है यार this is what I बिल्कुल. really wanted to do ठीक है Yeah, yeah. that I'm connecting this point because what you have studied and what you are doing right now I'm pretty much sure कि उसमें से 50% तो वो सिखाया भी नहीं होगा यूनिवर्सिटी ने ठीक है a lot of time what we see is फिर अगर मैं ग्रेजुएशन से बात करूँ सी वी हैव लैक ऑफ नॉलेज ऑलवेज लोग लोग मुझे मिलते हैं और लोग कहते हैं कि यार हमारा ना ये मसला है तो मैं कहता हूँ भाई जिस जो करोड़पति है उसने भी उन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और अगर कोई का अच्छा सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा उसने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है आपको बस कॉपी नहीं करना होता है तो आपको ये देखना होता है यार क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है आई एम प्रीटी मश्योर एक अगर मैं 10 साल एक चीज़ कह रहा हूँ और मुझे वो 10 साल बाद आपने वो चीज़ नहीं करी तो आई एम प्रीटी मश्योर आपने उससे ज़्यादा पूछा होगा अपने आप से कि यार ये मैं चीज़ करना भी चाहती हूँ नहीं करना चाहती अच्छा करूंगी बुरा करूंगी दैट्स अ डिफरेंट थिंग मतलब कोई कुछ आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर दैट मच टैलेंटेड अगर अभी आप जाके इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे लिख दें कि यार मेरा ट्रेनिंग सेशन है तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ गेस ऑडियंस ठीक है बट यू नीड टू Depends on the price. दैट्स But yeah, I understand what मतलब you mean. दैट्स टोटली थिंग है मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको सही टाइम पे क्या करना है ठीक है Yeah. सो द मेन थिंग अब ये तो हमने बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू रिलेटेड टू दिस ट्रेनिंग सेशन कर ली ठीक है नाउ आई वांटेड टू नो व्हाट्स योर परसेप्शन ऑन दिस टॉपिक ऑफ जेनजीज वर्सेस मिलेनियल्स ठीक है you right now you are also hosting a very good sessions in the IOBM thing ठीक है and you were Yeah. talking with a lot of people मेरे ख्याल से शायद 10 साल 15 साल से आपने जितनी लोगों से बात करी है उतनी शायद किसी ने नहीं करी होगी और लोग आपको बहुत कुछ सिखाते हैं आपका परसेप्शन डिफरेंस होता है ठीक है ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ सही लग रही है वो सही हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दो लोग कह रहे हो हर चीज़ सही हो जस्ट टू हैव अ नॉलेज कि सारा आपको क्या लगता है कि यार व्हाट्स द रियल डिफरेंस ऑफ जेनजीज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जेनजीज और मिलेनियल्स में कोई फ़र्क नहीं है लोग जो कह रहे हैं ना कि भाई जेनजीज को काम करने का तरीका नहीं है और ये सारी चीज़ें क्योंकि जब मैं गया था पहली मर्तबा इंडस्ट्री के अंदर तो मेरी भी जनरेशन पुरानी थी जिनके साथ मैंने काम करा था बट हमारे पास कोई वर्ड नहीं था तो हमने वो बोला नहीं हमने Are you Gen Z? नहीं, नहीं, आई एम नॉट अ जेन ज़ी, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड क्योंकि हमेशा जनरेशन डिफरेंस तो रहेगा ना। ऐसा तो नहीं हो Yeah. सकता कि मैं जिस जगह नौकरी करने जाऊँगा वो सेम एज ग्रुप का ही हो मेरा, जो मुझे जॉब दे नहीं, रहा है, ठीक है? of सो course. व्हाट डू यू थिंक लाइक इज़ इट राइट? इज़ इट रॉन्ग? बिकॉज़ आई एम प्रीटी श्योर आप जेन ज़ीज़ के साथ भी Okay, काम करते होगे। I have a perspective on this. My POV is
Well, let's talk about others first because there came an article जो कि I think बाहर की किसी कंपनी के एक employer ने लिखी थी actually, and it was something against Gen Zs, and it was like they don't want to work. They're always looking for excuses. Uh, they are very emotional, or let's say they care more about emotional well-being, more than us. एंड फिर ज़ाहिर-सी बात है डि जो कि हमारे पास जब आर्टिकल आया तो हमने इसके ऊपर डिबेट किया एंड ऑल। लेकिन लाइक आई सेड 2 साल पहले ये चीज़ आई या 1 साल पहले आई। अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग इज़ कंप्लीटली डिफरेंट एंड व्हाट आई फील इज़ दैट आफ्टर कोविड, उमैर, आफ्टर कोविड हम सब में थोड़ा-सा एक ऐसा अ, ना काम करने का जज़्बा शुरू हुआ है या कम काम करने का जज़्बा शुरू हुआ है। इट्स नॉट जस्ट देम, इट्स ऑल ऑफ अस। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, I have done work in 20 I've done work at in 2009, 2008, 7, 2012, 2015, and of course post COVID as well. And whenever I've worked, this is the lowest काम की स्पीड या काम की तरफ रुझान या काम की तरफ किसी किस्म का भी कोई पैशन, it's at a low, it's at an M, and I feel off, and I don't think Gen Zs to be blamed for it. That's number one for Gen Zs. I am in favor of Gen Zs over there. Number two is that I have two brothers. I have a pair of twins. Dono twins, like they're a pair of twins, and they are Gen Zs, and they're doing martial arts really well. You know what I've learned from them? I've learned from them how to raise my kids in the best possible way. I've learned from them how to talk to people in a different way, in a nice way, so that I empathize with them and at the same जो कोई ट्रेनिंग सेशन या कोई मिलेनियल या कोई और अंकल आंटी टीचर मुझे नहीं सिखाया ना, उस तरह के एग्जांपल्स दे दे के इन इन बच्चों ने मुझे सिखाया है। So picture that. How not to mom shame anyone. How not to think about, I mean, there are so many examples that I can give you right now, but if I'm teaching my kids something and it's amazing, it's because of these Gen Z's attitude, Gen Z's thoughts, their processes. अब अगर हम काम की तरीके की बात कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि they are a little different from us, of course they're a little different, they're very different from us, क्योंकि उनका जो span of लेट्स से अटेंशन है वो हमसे कम है, क्योंकि हम लोग इंडियन मूवीज अक्षय कुमार और शाहरुख खान की देखते हुए जो है वो बढ़े हैं, बड़े हुए हैं। वो लोग जो है वो छोटी-छोटी सी 1-1 डेढ़-डेढ़ मिनट की रील्स देखे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि बॉलीवुड को यहाँ पर क्या हो गया था बिकॉज़ व्हेन जेन ज़ीज़ केम इन दे स्टार्टेड मेकिंग रियली बैड मूवीज़ या मेबी इंग्लिश मूवीज़ वर बेटर और समथिंग, या हम लोग को बहुत कूल बनना था, ये जो भी सिलसिला, बट दे डिडन्ट सी व्हाट आवर प्रॉब्लम्स वर। व्हेन जेन ज़ीज़ आर नॉट थिंकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, वी वर जस्ट थिंकिंग अबाउट एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़का या एक गरीब, यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। सो हमारे प्रॉब्लम्स ही इस तरीके के फ़िल्मी किस्म के थे, हम लगे हुए ही किसी और काम में थे। व्हेयरएज़ व्हेन आई सी माय ब्रदर्स, व्हेन आई सी अदर जेन ज़ीज़, व्हेन आई सी these teenagers, I see a different type of conversation happening between them, and I'm really happy about it. I love the way they take everything so seriously, and yet they feel about it. So they know about their rights, they know about their responsibilities, and they know how best to take a shortcut in. And shortcuts are not bad. हम पाकिस्तानीज़ जुगाड़ू को ले जाते हैं। So why not? मतलब हमें हमें शॉर्टकट सबसे अच्छी निकालने आते हैं। So I feel like they have this spirit of activism जो हम मिलेनियल्स में नहीं थी। जो हमने चीज़ें सोची, हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सके। ये लोग कर रहे हैं, So while they're learning Now, from us, we're learning from them as well. now these are very good pointers, लेकिन इसके अंदर एक और perception ये है कि मीडिया उन्होंने तो चेंज नहीं करा था। This I also agree with that point. अगर Yeah. I talk to a lot of people, a lot of Gen Zs, और कुछ लोग हैं जिनके सेशंस अभी अलाइन हुए हैं, एंड आई वाज लाइक यार तू जो 18 साल में तुम लोग कर रहे हो तो मैं तो सोच भी नहीं रहा था। आई अप्लॉज ऑन दैट थिंग। बट Yeah. अगर हम अपनी जनरेशन और हमसे प्रीवियस जनरेशन में देखें तो मीडियम तो हमारे पास भी चेंज हुआ था। आई स्टिल ऑन दैट पॉइंट आई फिगर आउट कि यार कुछ टाइम बैठा मैंने सोचा कि यार द मीडियम ऑफ माय डैड सेइंग कि इंग्लिश सही करनी है न्यूज़पेपर पढ़ लो, टू माय डैड सेइंग इंग्लिश सही करनी है मूवीज़ देख लो। मीडियम तो हमारा भी चेंज हुआ, ठीक है? अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, एनी मीडियम। Words. Yeah. Horizontal to vertical shift, I from a creative background, so I still remember that ad when we usually remember that मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता दो ना नास पान मसाला, those jingles, ठीक है?
द पॉइंट इज़ कि भाई उस वक़्त 1 मिनट के जिंगल्स बनते थे। मैंने उस तरीके से चीज़ें करी। उस वक़्त उस तरीके से एजुकेशन थी, उस वक़्त उस तरीके से मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन था, तो हमें वो चीज़ सही लग रही थी। अभी हुँ। मीडियम और कन्वर्सेशन अलग है, तो हम उनको जज क्यों कर रहे हैं? ठीक है? वो बात ब बिल्कुल, वो बिल्कुल, ब बिल्कुल। मतलब वो बात बिल्कुल ठीक है। बिकॉज़ मेरे मेरे घर में 2 जेनज़ीज़ हैं, ठीक है? मेरे छोटे बहन-भाई। या और वो बहुत ना वो हैं, मतलब अभी जी लेते हैं, कल का कल देखेंगे। और फिर मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिला। अब मेरा क्या है कि हमारा ये था कि बिल्कुल। अगर हमें कोई चीज़ दे दी जाए ना कि आपको ये काम करना है, तो हम उसके बारे में सोचते बहुत हैं कि यार ये करने से ये होगा, ये करने से नहीं होगा। और मेरा छोटा भाई वो करके आ जाएगा, बोलेगा बोलेगा मैंने कर लिया, नहीं चल रहा था तो अब कुछ और कर लेता हूँ, ठीक है? तो सही इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, द 100%। this is what my main conversation बिल्कुल। that point to a lot of guest speakers to understand कि यार जेनज़ीज़ और मिलेनियल्स अलग हुँ, हैं, क्योंकि वो अलग टाइम पे पैदा हुए हैं, उनके अलग मीडियम्स हैं, ठीक है? अगर आपके किसी को, मतलब मैं बहुत सारे एचआर से बात करता हूँ, वो कहते हैं उनके एथिक्स बहुत अलग है। मैंने कहा तो ज़ाहिर-सी बात है, उनको 9 टू 5 काम करके 30,000 रुपए दोगे तो वो किसी के भी एथिक्स अलग हो जाएँगे, ठीक है? multiple streams of income. Yes, they also do that. There's also that, yeah. द बिगेस्ट थिंग अ जेन ज़ी हैज़, जो हमारे पास नहीं है, उनके पास वो बास नेट होता है। ये मेरे भाई ने मुझे बोला। मैंने बोला भाई कि तुम इतनी चीज़ें करते हो। बोलता है मुझे पता है मैं कुछ नहीं करूँगा तो आप हो ना। मैंने कहा यार ये ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड जी। थॉट प्रोसेस। इसकी वजह से उसका रिस्क फैक्टर बहुत अच्छा है मुझसे। मतलब वो मुझसे ज़्यादा अच्छे डिसीज़न इसलिए ले पाता है क्योंकि उसको पता है अगर मैंने कोई चीज़ फ़क अप करी भाई सँभाल लेगा। सो अगर आपके पास अगर बास नेट हो, आपको हुँ, पता हो कि मुझे कोई सँभाल सकता है, तो जेन ज़ी नहीं, जेन मिलेनियल्स में भी जिन्होंने ग्रो करा उन्होंने ऐसे ही करा होगा। So yeah. we have seen Ambani, we have seen Tatas because उनके 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 Yeah. पेरेंट्स ने उनको वो नेट दिया कि भाई ठीक है आगे जाके खेलो, नहीं चलेगा तो हम सँभाल लेंगे। सो अगर हम जेन ज़ीज़ के साथ भी ये करें कि ठीक है यार करके देखो, बिकॉज़ येस आई हैव सीन पीपल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आफ्टर कोविड हमने ना बहुत मतलब दीन-ईमान से उस चीज़ को फ़ॉलो करी है कि यार वर्क फ्रॉम होम करना ही है, ठीक है? एंड दिस इज़ व्हाट आई सी कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वाले खुद नहीं करना चाहते। In UAE, I have seen a lot of people, a lot of my friends work in Google, Revolut, a lot of different companies और वो रिमोट बेस्ड हैं और उनका सब कुछ सही चल रहा है। उनके ओकेआर्स मिस नहीं होते क्योंकि उनको पता है भाई काम कब करना है, एन्जॉय कब करना है। पाकिस्तानियों में असल में मसला रहता है कि हम अपनी ईज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत सोचते हैं कि भाई ठीक है ये मसला है। सो आई पर्सनली बिलीव आपने बिल्कुल सही बात करी कि भाई जेन ज़ीज़ बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं और उनसे वो चीज़ें सीखनी भी चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं पता अगले 5 साल बाद हो सकता है आप किसी जेन ज़ी के लिए काम कर रहे हो। तो फिर जब वो कहेगा तो फिर उसके लिए वही चीज़ सही होगी। So बिल्कुल, that या। that is a one good topic. So the next point that I want to discuss is what should be the right pathway. Like for example, there are a lot of people who are doing their graduation, ठीक है? ग्रेजुएशन ठीक है। करने के बाद उनको ये लगता है कि यार ये चीज़ कर ली अब थ्रू आउट यही करना है। आई एम प्रीटी हुँ, मच श्योर कि जब आपने ग्रेजुएशन करी होगी, क्योंकि जैसे भी आपने बताया कि देयर इज़ अ मेंटर, मतलब देयर इज़ अ पर्सन जो कि आपके कॉलेज में आया जिसकी वजह से आपने थि 360 शिफ्ट लिया कि ठीक है यार ये चीज़ कोई है जो मैं करना चाहती हूँ, ठीक है? या हुँ, करना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास सही मेंटोर्स हों, ज़रूरी नहीं है हर बंदे को लगता हो कि यार यही चीज़ सही है। बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द राइट पॉइंट टू फॉलो या पिवट फ्रॉम योर थिंग? कि भाई ठीक है यार मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ या मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, बट मैं इस चीज़ के अंदर एक्सेल करना चाहता हूँ। हुँ। व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द राइट थिंग या राइट माइंडसेट टू गेट टू अल्टीमेट गोल? Yeah, so my understanding is that one should be aware of what they want to do. So yeah. And how can they be aware until unless they put their skills into those paths जिसमें से उसे try करना है कि किस किस की तरफ जाए, राइट? तो मैंने अपने बच्चों के लिए साथ में जितने भी सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर कि आईओबीएम क्योंकि मैं होस्ट कर रही होती हूँ शोज़ और मैं कमिटी मेंबर हूँ अलुमनाई एसोसिएशन पे, तो लोगों को लगता है मेरा कोई पव्वा है वहाँ पर, which is not true, but people do come to me for guidance that way. And even because of Torque and SOL connections, people come in. So what I tell them is that they need to explore it in the right possible way, which is वो try करें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। जब मैंने कॉन्फ्रेंस किया था तो मैंने देखा था कि वो स्पीकर्स वगैरह थे। जब मैंने कार्निवल किया था तो मेरी
सोशलाइजिंग स्किल्स में, सेलिंग स्किल्स लाइक आई सेड। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों में जब आप डल जाते हैं ना, उसी वक़्त आप सीखते हैं उनसे। So what my plan is that I would have my kids do all those things or any you know what we need to start again because पता नहीं मैंने इस सवाल में क्या बोला है मैं खैर हो गया। जवाब अब मैं जरा उसको अब मैं उसको अलग से ही जवाब दूँगी या फिर हाँ, पिछला याद करने की नहीं, कोशिश नहीं, कर नहीं, रही हूँ। डोंट डू इट क्योंकि मुझे The लगी reason I'm like, you मैं can say it in this नो or यार let's say नहीं, it नहीं, in that. नहीं, डोंट डू दैट मुझे लगने लग गया था कि आप उस सवाल को दोबारा Yeah. रेप्लिकेट करो तो वो ज़रूरी और नहीं है। वो yeah, तो yeah. अगर So maybe if you don't ask the question and I just start, ओके, would that be fine? एक काम करते हैं, विल कट दिस क्वेश्चन, ठीक है? विल डिस्कस ऑन अनदर टॉपिक, ठीक है? ताकि फिर वी गॉट इन द रिदम एंड देन विल डिस्कस द टॉपिक ताकि वो एक रिदम में रहे। अभी क्योंकि अभी हमने वो Fair, चीज़ कोई और चीज़ पे बात करेंगे, fair. तो नाउ नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेटवर्किंग, उन्हें पता है कि उसके बाद आप फॉर्म में आ जाओगे, तो फिर दोबारा सवाल पूछेंगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर। फॉर्म में तो मैं अभी भी बहुत सेट वाला हूँ, इसका जवाब मैं दे सकती हूँ अगर आप बोलो। हाँ, हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन करते हैं, अगला सवाल पूछेंगे, देन सही वी है, आर बैक टू सही है, दैट क्वेश्चन, सही है, ठीक है? डन एंड डन। इन 3, 2, 1, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज, आई थिंक ये इसका जवाब आप बिल्कुल हर 100% एग्री हो गए कि मैं आपसे पूछूंगा। यू आर फ्रॉम द फ्रॉम 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 सम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टॉर्क, जहाँ पे नेटवर्किंग, लर्निंग डेवलपमेंट, कनेक्शन बिल्डिंग, ये मतलब अगर मैं स्टेजेस बन तो ये 4 चीज़ें तो होनी चाहिए इसमें आने के लिए, ठीक है? बिल्कुल। Now we are seeing that yes, people are now more towards networking, people are no more towards connection building, क्योंकि उनको अब रियलाइज हुआ है कि यार नाउ दिस, ये क्या समझ लें कि अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिमोटली काम, एसेंशियल है। ठीक है, हुँ, रिमोट एसेंशियल है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिमोटली काम कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है 90% आप जिस बंदे के लिए काम कर रहे होते हैं उसके फर्स्ट जो आपसे इंटरेक्शन होगा ना वो वर्चुअली होना, ठीक है? ठीक है। और उसके लिए आपके कनेक्शन आप लोगों को जानेंगे कैसे? अब आपको हुँ, पाकिस्तान में भी अगर काम करना है, ठीक है? तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल उमैर अली नाम का एक बंदा है, उन एक्स-वाई-ज़ेड जगह पे रहता है और वो इस काम के लिए अच्छा है, जब तक आप लोगों के हुँ, घर आउटरीच ही नहीं करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, सही। हाउ इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस नेटवर्किंग, दिस कनेक्शन बिल्डिंग, लाइक क्या 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 डिफरेंस हो सकता है अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट करें तो 5 साल में वो आपको कहाँ ले जाती है? या कहीं लेके भी जाती है, नहीं जाती? और डेफ़िनेटली लेके जाती है, मुझे बहुत सारी जगहों पे लेकर गई है। मैंने लाइक आई सेड व्हेन आई जॉइन्ड आईओबीएम इवन बिफोर दैट लाइक आई सेड आई लव मीटिंग पीपल एंड इवन आई थिंक आई लव मीटिंग पीपल एंड व्हेन इट्स अबाउट नेटवर्किंग मैंने ऑन पर्पस कभी नेटवर्किंग नहीं किया honestly but I did it for the fun of it and I enjoyed meeting people but it took me to a lot of places so IOBM की एग्जांपल्स ये कि बहुत सारी दफ़ा जब मुझे कोई मसला ये छोटी सी एग्जांपल है जब मुझे कोई छोटी-मोटी सी कोई प्रॉब्लम होती थी, अगर फाइनेंशियली किसी किस्म का कोई मसला है और फिर इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो सीन कराना है, मैं ईमेल कर दिया करती थी, ठीक है? बहुत सारे लोग वही मसला लेके बैठे रहते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूँढ रहे होते हैं। सो आई डिड दैट पार्ट एंड टू मेनी ईमेल्स एंड देन फिर सोसाइटी जब मैंने स्टार्ट करी, आई वाज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ वन ऑफ द सोसाइटीज़ फॉर लाइक 3 इयर्स, एंड इन दैट time the events that I did every time, every year freshies would come in and we would do a lot of events. I would get to know all of them. I am still connected to most of these people. They're still texting me. I'm still texting them. So that was another. फिर like I said जो email करी और इतनी सारी emails तो तालिब साहब जो कि ओनर हैं वहाँ कर उनसे भी बातचीत होना शुरू हो गई। मुझे बहुत सारे इंटर्नशिप्स के अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, मुझे बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट करने की अपॉर्च्युनिटी मिली। मुझे जगह-जगह मेरा नाम लिया जा रहा था। अगर वो 20 बच्चा जिसको कहीं एक सर्टेन कॉन्फ्रेंस में वॉलंटियर करना होता था ना, so सारा मशहूर वुड बी ऑन टॉप। I used to be there. It was me and a few other regular ones and we would go there, we would get these opportunities. So, एक तरीका तो ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएँ, किसी कॉलेज में जाएँ और आप कोर्सेज़ लें, आप अपनी डिग्री खत्म करें और आगे बढ़ जाएँ। और दूसरा तरीका ये है कि व्हेन यू आर समवेयर मेयर, you make a mark over there. You just put yourself out there, And I think that's exactly what IOBM gave me, and I grasped it, I grabbed it, and I went ahead with it. And it wasn't just IOBM. It was because of IOBM कि मुझे ऑफर टॉर्क से भी आई और डिफरेंट प्लेसेस से भी आई एंड आई वेंट ऑन अहेड विद दैट। इट वाज आल्सो कि जब मैं टॉर्क की वर्क प्लेस पे काम कर रही थी, एनीबॉडी हु हैड ही वुड क्योंकि टॉर्क और एसओएल के ऑफिसेस शेयर हुए हुए होते थे। Anybody who would enter that door, who'd welcome them, I would welcome them. I would make my own.
greeting for them, and I would welcome them. And some people still remember me. Are, are you the same Sara Masood jo ki hame, I remember you from there. I remember you from there. And every time you're at an event, make yourself count somehow. You just can't go there, roam around. I've seen so many people, Umair, who just like, अब खड़े हुए हैं, नेटवर्किंग का सेशन चल रहा है और वो बस खड़े हुए हैं, चाय सुड़क रहे हैं और and People that's it. usually don't know the real meaning of networking. Way to do it. ठीक Yeah, है they don't even way. मतलब it's not about a lot of people when I ask them, यार I'm introvert हूँ। मैंने कहा देखो there is a very big misconception. आप इंट्रोवर्ट है, आपकी अच्छी नेटवर्किंग नहीं हो सकती है, बहुत गलत बात है। ठीक है, हाँ Agree. आप इंट्रोवर्ट है, आपको आप जैसे लोग चाहिए। ठीक है, अब आप जैसे लोग तो मिल सकते हैं ना। आई एम प्रीटी मशहूर नेटवर्किंग में। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ना ब्लेम करते हैं यूनिवर्सिटीज को, बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं एजुकेशन सिस्टम को। सही है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल। आई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने जिस हर बंदे ने लम से नहीं पढ़ा। ठीक है, आई हैव अ फ्रेंड हु वर्क्स इन माजू, वो आज यूनिलीवर में। आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने आईओबीएम से पढ़ा है। ठीक है, वो शायद किसी और कंपनी में। तो द पॉइंट इज, आपको यूनिवर्सिटी या कोई भी जगह, सही है, वहां पे आप किस तरीके से अपने आप की आउटरीच बढ़ाते हो। दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस। क्योंकि किसी को ख्वाब नहीं आएगा क्या सारा मशहूद है, वो यहाँ रहती हैं, वो ये करती हैं, वो अपनी आउटरीच कैसे बढ़ाएंगी। ठीक है, एंड टू अंडरस्टैंड कि हर बंदे को आपसे शायद अभी काम ना हो, 6 महीने बाद हो सकता है, साल बाद हो सकता है, लेकिन उसको आप याद तो रहें तब तक। मतलब नेटवर्किंग इवेंट्स, अब तो मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार अब तो इतने इवेंट्स होते हैं। बैक इन 2015 2016, ठीक है, कुछ अल्लाह ने ये टॉर्क और एसओएल जैसी कंपनीज दे दी जिन्होंने इवेंट करा लिए। वरना द मेन थिंग जो लोगों को लगता था, यूनिवर्सिटी जाना है, पढ़ना है और वापस आ जाना है। और ये बहुत, Okay. और मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लोग इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं समझते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट 4 साल होते हैं जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। ऑल्दो एवरीवन लिव्स इन दैट बबल। मैं सबको ये कहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी ना, वो एक बबल होता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना, वो बिल्कुल वैसा नहीं होता। लेकिन या तो अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, ठीक है, या तो आप अपना माइंडसेट ये बनाओ कि मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो मुझसे बहुत आगे हैं, ताकि वो मेरे बारे में जानते हो। क्योंकि लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों को ये मैटर ही नहीं करता कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा। अगर आप उन अगर आप उनके लिए सही बंदे हैं, अगर उनको ये लगता है कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है। आई हैव सीन पीपल जो इकरा, जो पता नहीं कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, लाड़काना और पता नहीं कहाँ-कहाँ से, और वो ऐसा-ऐसा काम कर रहे हो तो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, देयर आर पीपल हू आर वर्किंग इन यूएई, आई हैव मेट देम एंड आई वाज़ लाइक, यार आपने कहा सर, यार मैं बहावलपुर हूँ। मैंने कहा शिट मैन, बहावलपुर में मतलब, Yeah, it's amazing. क्योंकि जो जो द बिगेस्ट थिंग दैट वी सी इज़ कि यार तरक्की तो शायद सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वाले करता हूँ। मैंने कहा बाकी भी करते हैं भाई। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वो चीज़ गलत लगती है, सबके लिए गलत है। क्योंकि इसको ना एक परसेप्शन बना दिया जाता है। अगर आप ये चीज़ यूनिवर्सिटी में कर रहे होते हो, या अगर आप टीचर से ज़्यादा बात कर रहे होते हो, तो वो ना एक परसेप्शन है। बच्चे कहते हैं, यार तुम क्या टीचर के साथ ज़्यादा लगे हुए हो, तुम तो टीचर के फेवरेट हो, इसलिए तुम्हें शायद। 5 साल गुजर जाते हैं, फिर वही बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि टीचर्स को और वो लोगों को वो याद होता है। अगर आप याद ही नहीं होगे किसी को, तो वो क्यों क्यों Yeah. क्यों कोई आप में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, Yeah. क्यों क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में ना ये भी होता है, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप अच्छे ग्रेड्स नहीं लाओगे ना, आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। आई थिंक दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट मिसकंसेप्शन दैट पेरेंट्स टीच देयर देयर किड्स, कि भाई अगर आप अच्छे ग्रेड्स नहीं लाओगे तो आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी में आपको पता चलता है कि ग्रेड्स से आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलती, और टैलेंट, आप किस तरीके से उस चीज़ के अंदर पिवट कर सकते हो। अम, Yeah, I think you're right. Grades don't matter, schools don't matter. What matters is what you are at present. And you're never the same too. So you need to like always keep trying. I As still all socialize. आई स्टिल रिमेंबर दैट हम मैं अब आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी हुआ होगा कि आप यूनिवर्सिटी के 5-6 साल बाद ऐसी कोई चीज़ किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं, और फिर आपको कोई यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट दिखता है। पता है, अरे वो ये कैसा था तब?
और अब कैसा है, क्योंकि किसी को नहीं पता अगले 5 साल बाद आपकी ग्रोथ क्या होगी, ठीक है? किसी को नहीं Right. पता कि आप किस तरीके से उसके अंदर रीच आउट करोगे। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू कनेक्ट विद दैट कि व्हाई आई आस्क्ड दिस, क्योंकि आफ्टर कोरोना, ये कोरोना के वक़्त भी हमारी मुल्क में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, लोगों को पता चलने लगा कि भाई लिंक्डइन जो है ना, वो सिर्फ़ जॉब के लिए नहीं होती। लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट था कि आपको लिंक्डइन या आपको ये जो प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल्स, ये सिर्फ़ तब बनानी होती है जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। Yeah. नाउ आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस जो कि अब लिंक्डइन पर आ रहे हैं, क्योंकि जिनको आपको बिल्कुल। दिखाना है, इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आपको किसी कंपनी के साथ काम करना है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर, का सीईओ तो आपको मैसेज नहीं करेगा। अगर आप उसके सीईओ को मैसेज करेंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर वो देखेगा नहीं। तो जो हायर कर रहा है, जो एचआर मैनेजर्स हैं, जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो उनके लिए हायर करते हैं, आप उनको देखोगे तभी तो वो आपको आप उनको रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? तो व्हाट डू यू थिंक, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, ठीक है? आर यू समथिंग जो आपको लगता है कि यार नहीं, प्रोफेशनल प्रोफाइल में आप शेयर करें, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ कि यू यू आर शेयरिंग योर कंटेंट, जो भी आप चीज़ें बना रहे होते हो, क्योंकि लोगों को पता Yeah. होता है, इट्स मोर लाइकली आपको ना हर किसी को बताना पड़ता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या मैं करती हूँ, और कर रहना है आपको ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि किसी को मेरी आज ज़रूरत पड़े, हो सकता है किसी को मेरी 1 साल बाद ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर मैं उसको याद ही नहीं Mm. होऊंगा तो मुझे रीच आउट कैसे करेगा? आपको अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी पड़ती है। नाउअडेज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग रिमोट जॉब इंटरव्यूज़, और मैं ये कहता हूँ कि यार आपके पास एक ही चांस होता है, आपने उस बंदे से कभी मिले नहीं होते, वो आपको लिंक्डइन पे देखता है, रीच आउट करता है, और वो आपको वर्चुअली देख के अंदाज़ा लगा लेगा कि आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है? Yeah. क्योंकि आप ठीक है, आप पब्लिक फिगर हो, आप लोगों से मिलना पसंद है, लेकिन आप लोगों से जब नहीं मिलोगे, तो आपके सामने वही प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल ही एक बंदगी, जिसको देख के आप जज करते हो कि क्या ये इंसान मेरे लिए परफ़ेक्ट है? क्या ये वो काम कर सकता है, नहीं कर सकता? और ये इस तरीके से होता है, किस तरीके से आप शोकेस कराते हो अपने आप को। हाउ इम्पोर्टेंट Yeah. इज़ दैट फॉर यू? Yeah, I think you're right when you say out of sight is out of mind, and you gotta be there and you gotta be present. Um, for me, LinkedIn is very essential because, like I said, when I'm doing events, जब हम workshops वगैरह put out कर रहे होते हैं, many a times when we're only putting out, let's say कि हमने ये फला फला workshop की आज के दिन, ये मैं company wise बता रही हूँ. There are a lot of queries that we get just on that one रिट्रीट, वर्कशॉप या सिमुलेशन जो हमने डाली है ना, उसके बाद हमारी क्वेरीज़ आप मैं बता नहीं सकती अनगिनत होती हैं, अनगिनत होती हैं। जितने भी सारे लोग हैं वो रीशेयर कर रहे होते हैं, जितने भी सारे एम्प्लॉइज़ हैं उस टीम के जिसकी वर्कशॉप हमने लगाई हुई है। एंड देयर इज़ सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स, वेरी गुड। व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरी अपनी प्रोफाइल के बारे में, इफ आई पुट अप अ शो, अभी जो जैसे मैं सेलिब्रेटिंग स्वीट सक्सेस कर रही हूँ, इफ आई जस्ट पुट आउट हाउ आई, अभी शो रेडी भी नहीं हुआ है, सिर्फ उसके फिलर्स डाल दिए मैंने, ट्रेलर डाल दिया थोड़ा सा, उस दिन मेरा डे कैसा रहा वो डाल दिया, आई स्टार्ट गेटिंग होस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, इट्स अनदर थिंग दैट पीपल कांट अफोर्ड, that's separate, but I start getting opportunities, and whenever I feel like there's a click, whenever I see that there is something to contribute to, I would go for it. But I get opportunities every time I put up something that's great, that's amazing. Because out of sight is out of mind, definitely, but what you're showing should also be good enough. It should be some sort of it should make some sort of relevance, and it should also contribute in something that is beneficial for the other person, you know and if you do that, that's great. You should be confident, and you should show your confidence through your posts. How is it that you're confident? If you are expert at a certain discipline, or let's say at a certain subject, you should put the knowledge about it out there so that people could understand, okay, so this information content is right here, and this is what this person thinks, and I vibe with him. I get what he's saying, right? Perspective only about Karachi would give you so much to think about, because there's a group of people who are against how we're living, and then is a group of people who are in favor in some way, and then there are people who think that they love Karachi, and at the same time they're looking for um, things or ways to make it a better place for everyone. And I would go for the latter most. I would go for the person who thinks Karachi is our city,
and at the same time is giving solutions, because I give solutions, because I want to hear solutions. I want to see as in an individual capacity how can I make things better. So जिसके साथ आप वाइब करोगे, जिसके साथ एम्प्लॉयर वाइब करेगा, उसी को वो फिर हायर भी करेगा, गिवन कि उसकी वो सारी एक्सपर्टीज वगैरह उसके साथ मैच करती है, क्योंकि आजकल एक नॉर्मल रेगुलर बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पीओवीज जो ना वो स्ट्रेट इन लाइन हो। एंड या मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इसकी मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये समझता हूँ कि नहीं। लिंक्डइन पे ओपन फॉर वर्क इज़ मोर लाइक कि आपकी नेम प्लेट है गेट की, लेकिन बिल्डिंग के बाहर किसी को पता नहीं चलेगा कि आप ओपन फॉर वर्क हो। आई सी थिंक कि आपको ओपन टू ऑल रहना चाहिए। जब आप अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो उससे आप लोगों को बता रहे होते हैं कि दिस इज़ माय थॉट प्रोसेस, मैं इस तरीके में ऐसा सोचता हूँ। क्योंकि आपको स्पेसिफिकली हर किसी को ये डेलिबरेटली नहीं बताना कि नहीं आप भी ये सोचो। हो सकता है बहुत सारे लोग वो चीज़ आपने जैसे बोला कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ लोग डिफरेंस में हो रही है। हाँ, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उनके भाई, तो उनको नहीं समझ में आता नहीं। आपका कहीं न कहीं कनेक्शन होना चाहिए, सही है? दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव। इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे हायर हो सको। आपको ये समझना पड़ता है कि ना हायर ना होने के पीछे ओवर क्वालिफ़िकेशन भी हो सकती है। I've डिफरेंट been there, by the हाँ, way. डिफरेंट थॉट प्रोसेस भी हो सकते हैं। डिफरेंट थॉट प्रोसेस भी हो सकते हैं। आई गॉट अ रिजेक्शन ईमेल वेयर दे आर सेइंग दैट सॉरी वी आर नॉट गोइंग विद यू, यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द पोज़ीशन। क्योंकि I've क्योंकि been there. क्योंकि क्योंकि सिलिकॉन वैली में तो रह नहीं रहे ना। यहाँ पे एक बंदा सीनियर पोज़ीशन पे भी उतने पैसे ले सकता है, एक बंदा हेड ऑफ डिज़ाइन पे भी ले सकता है। ठीक है? क्योंकि हायरार्की कोई जनरल तो है नहीं कि भाई ठीक है, ये मुल्क ने बना दी है कि सीनियर इतने साल बाद सीनियर हो जाएँगे इतने। इट्स नॉट अ सिलिकॉन वैली। हर बंदा अपने Yeah. हिसाब से होता है। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल। मैं कहता हूँ कि यार आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कल आप मार्केटिंग मैनेजर से आप असिस्टेंट मार्केटिंग यार वो कंपनी छोटी थी तो मैं मार्केटिंग मैनेजर था, फिर मैं बड़ी कंपनी में तो मैं असिस्टेंट हो गया। लाइक दिस अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग, बट आपको ये चीज़ रेलेवेंसी ज़रूरी होती है क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर समवन। हो सकता है अभी आप उसके लिए सही ना हो, लेकिन उसके लिए जब तक वो चीज़ दिखेगी नहीं, तो वो बिकेगी नहीं। सही है? The next thing can be controversial. If you wanted to answer it, you can. If you don't want it to, you can't. You working for Torque for more than a decade now. बीच में गैप लिया था बच्चे, बट या मतलब वो तो ज़रूरी था, वो तो ठीक है। लेकिन आप यू आर वर्किंग फॉर वन ऑर्गनाइज़ेशन फॉर मोर देन अ डेकेड, ठीक है? नाउ नाउ आई वांटेड टू नो बिकॉज़ ये बहुत ना थॉट प्रोसेस है, लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब चेंज करने से ही मेरे लिए पैसे बढ़ते हैं और मैं सक्सेसफुल बनूँगा या मेरी ग्रोथ होती है। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ग्रोथ की डेफिनेशन हमेशा वर्टिकल नहीं, हॉरिज़ॉन्टल भी होती है। कोई ना कोई तो एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आप एक ऑर्गनाइज़ेशन के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है? एज़ योर पर्सपेक्टिव आपको क्या लगता है कि ग्रोथ के देखते हुए, ठीक है, व्हाई डिड कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती हैं, व्हाई डिड यू डिडन्ट चेंज? व्हाई डिडन्ट यू गो आउट? आई चेंज्ड। You changed? Yeah, why didn't you go out to आगे आगे बोले। why didn't you go out to from Pakistan? पाकिस्तान ही क्यों? सही है। एंड व्हाट डू यू थिंक कि वर्टिकल ग्रोथ ही सब चीज़ें होती हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी कोई चीज़ है? मतलब ज़रूरी है कि कंपनी चेंज करने से ही ग्रोथ होती है, एक कंपनी में रह भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ये मैं बताता हूँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ। पूछे, हम बताएं। हमारे से जो पुरानी जनरेशन है ना, मैंने उनमें देखा है लोग काम करते हैं 15-15, 20-20 साल, रिटायर हो जाते हैं उस कंपनी में। और फिर ऐसा होता है। और पर फिर हमारी जनरेशन थी, उन्होंने कहा भाई जितनी जॉब चेंज करते हैं ना उतने ज़्यादा पैसे बढ़ते हैं, उतना ज़्यादा सक्सेस बढ़ती है। तो फिर मैंने अल्टीमेट देखा कि हो सकता है उस बंदे के लिए भी वो चीज़ सही हो, क्योंकि जॉब ना चेंज करके भी तो शायद उसके हर साल पैसे बढ़ रहे हैं। या क्योंकि जॉब चेंज करते-करते भी आप एग्ज़ीक्यूटिव से सीईओ नहीं बन जाते और हर बंदा बने ना बने ये भी ज़रूरी नहीं, ठीक है? तो व्हाट डू यू हाँ, या ओके, सो I'll because I need to put in an analogy or let's say a comparison मुझे डालना है यहाँ पे। देखिए कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, you start working, I don't know whatever XYZ company you start with, and you switch for better package, timing, more popularity, more showing off. अरे यार Unilever or whatever top tier company there are. Um,
ये रीजन होता है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो स्विच करते रहते हैं. देयर कम्स अ टाइम व्हेन दे गेट इनटू एन एमएनसी, एंड देन आफ्टर learning from the best, they come to a Setia company, या local company where they have a better package, and at the same time they're ahead, they're at a better position as well, and they're teaching and training there, right? अब वो मजे में, अब वो सबके हेड भी हैं, और अब वो अच्छा कमा भी रहे हैं खुशी से. मेरी सिचुएशन, I by nature have always been very authoritative, like entrepreneurial mindset. And I think Torque is one organization that has let me be with my entrepreneurial bit. They have let me make choices. They have let me be. They have let me be. And I've never had a problem, or I've never had restraints or leashes around. And I was able to experiment whatever I wanted to do. I did. I tried and all. There was a break that I took, and I went to an IT company. I spent 2 years there, and I did not enjoy it. It was a commercial outlet. It was just like call it a substitute for YouTube, Netflix actually, Netflix, right? And I didn't enjoy it because it was too commercial. It was too commercial. It didn't suit me at all. So I did switch. There was a time when I did switch. I also worked in an incubation center for a little while, and I did not enjoy, even though I was very tight with all the entrepreneurs at that time, budding or the inspirational one, and those who've been there and done that and all. But I did not enjoy over there either. And I made a comeback. I made a comeback with a learning digital festival in right during COVID times, and then I joined Storic back. And the way they welcomed me, the way everything felt just right back at home, I can't explain it. So I did make switches, but I came back to the same organization, and it was fun, and I'm still enjoying. I'm loving it. उसमें जो आई थिंक ट्रेनिंग इंडस्ट्री की सबसे कूल बात ये है कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग तो करा रहे होते हैं, लेकिन खुद से भी दिल में बड़े सॉफ्ट होते हैं। किसी का बुरा नहीं चाहते, बहुत अच्छे लोग होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग में भी इतने मसले नहीं करते। Yes. सो आई थिंक बाय नेचर, और मैं उमेर के साथ काम करती हूँ। ही इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड, ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, and he is just somebody I can connect with easily. He understands, I mean, however he puts himself out there, he's exactly that. And I love that about him. I just love it. थैंक So, यू फॉर right. आस्किंग, थैंक यू फॉर सेइंग दिस, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट ये था कि व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन पर्सनली, बिकॉज ये मैं बताना चाह रहा था लोगों को कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए सही है वो सबके लिए सही हो, ठीक है? आपको ये चीज़ सही लगती है और मैं इसको ग्रोथ समझता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने जब स्टार्ट करा ठीक है, तब कंपनी भी बहुत स्टार्टिंग में होगी। जब आप इवेंचुअली हर चीज़ देखते जाते हो तो आपको हर चीज़ पता चलती है, और आप वो भी एक जर्नी है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, मैं इसमें किसी को गलत नहीं कहता। जो लोग चेंज कर रहे हैं, गलत नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर आपका अगर आपको ग्रोथ पैसा समझ में आता है, तो वो तो फिर वैसे ही है। हाँ, सही है, आप किसी को बोले मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए, मैं 1.5 लाख रुपए माँगूँगा, वो आपको काउंटर ऑफर देंगे, एक 35,000 की जंप। हर साल ये करते रहो तो आई एम प्रीटी श्योर आप 5 साल में 1.5 2 लाख रुपए ऊपर होंगे, ठीक है? या बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए सेम हो। आप 15, 10, 12 साल से एक जगह काम कर रही हैं, वो लोग आपके साथ अच्छे हैं, वहाँ पे काम कैसा है, क्या वो आपके लिए बेहतर है? तो ज़रूरी नहीं कि वर्टिकल ग्रोथ हो, हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ भी होती मैं आपको मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मुझे टॉर्क में जो करना है, व्हेन आई टेल यू दैट आई हैव द इंडिपेंडेंस और लिबर्टी टू डू व्हाटएवर इट इज़ दैट आई वांट टू डू। I don't like I don't want to switch to any other place, because what I love is what's here, and I can do anything. If I want to create an event, I can do it. If I want to create some, let's say, podcast, I can do it. If whatever it is, I have the liberty. So even as because like I said, entrepreneurial role मिला हुआ है मुझे, तो इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ है ही नहीं. दूसरा ये कि you also need to look at the flexibility वाला part. How flexible are the working hours? For a woman like me who has two kids, age 7 and 9, it is very difficult to look after ek to their school and then their classes as well, right? But Torque's given me this liberty to
to help out, with all of these things. They give me the flexibility hours, and I'm pretty okay with it. So as long as that's hand in hand, for a woman it's difficult. You understand right? मैं आसानी नहीं होती है। लेकिन अगर मुझे इस तरह की आसानी मिली हुई है, तो मैं वही कंपनी चूज़ करूँगी और उसी के साथ रहूँगी दैट लेट्स मी डू ऑल ऑफ दिस। और जहाँ पे ट्रैवलिंग आती है, वहाँ पे आई ट्रैवल। और मैं तो इवन सेज दैट इफ यू वांना travel with your kids, you can do that. It's me who says, can I think work is work, and I would just rather keep the kids there because I have a setting here for kids. But then it gets difficult that way. But as long as the organization is keeping you warm and healthy and amazing, I think you don't need to switch unless your passions changed or uh, your ideas about a certain thing has changed. I don't think there's a need to change. ये इसको इसमें एक और चीज़ ये भी है ना कि बहुत सारे लोग कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं, ठीक है? व्हाट आई सी इज़ कि आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं जो भी चीज़ करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ मैं कर ट्राई सकती हूँ, कर रही हूँ। मैं ठीक है? ट्राई कर रही हूँ। आप ये नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो एक जगह पे मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मैंने बोला, "यार, आप पिछले 5 साल से एक जगह काम कर रहे हैं।" उनके लिए कंफर्ट ज़ोन क्या होता है? ठीक है यार, कंफर्ट मैंने कहा कंफर्ट अगर आपको आप अपनी तरफ से कोई चीज़ इनिशिएट ही नहीं कर सकते, आपको अपनी तरफ से कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, हाँ ठीक है, फिर आप स्टक हो, फिर आपको चेंज करना चाहिए एनवायरनमेंट। और ये बड़ा डिबेटेबल है, कुछ लोगों को ऐसी लाइफ़ चाहिए होती है, कुछ लोग कहते हैं भाई ठीक है, हमें यही चाहिए, हम नहीं चाह सकते वो माउंटेन ड्यू वाली ज़िंदगी गुज़ारना जिसमें हर थोड़ी देर बाद मसले हों, बिकॉज़ आपको इकोनॉमिकल फैक्टर देखने पड़ते हैं। यू नेवर नो, इट्स अ रिस्क इन पाकिस्तान, आप चेंज कर तो ज़्यादा पैसों के चक्कर में 2 महीने बाद वो कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है? एंड एवरीथिंग कैन हैपन क्योंकि स्टार्टअप्स तो अब ऐसे आ रहे हैं और ऐसे जाते भी हैं। लाइक 100 स्टार्टअप्स बट आई थिंक 5-6 सर्वाइव कर रहे हैं और बाकी 95 जो बंद हो रहे हैं। तो रिस्क तो है। आई एम प्रीटी मच श्योर रिस्क इसमें भी है क्योंकि आप एक जगह पर होते हो तो आप ज़्यादा चीज़ का जवाबदेह भी हो जाते हो। ये ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ईज़ के अंदर वो चीज़ खत्म नहीं होती। लोग आपसे पूछते हैं आप इतने साल से हो आपने अलग-अलग क्योंकि आपको फिर ये भी देखना है मैंने इतने साल से यहाँ पे चेंज क्या-क्या करा है। मैं अपने लिए क्या-क्या चेंज लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैं हूँ तो हूँ। एंड येस इट्स वन पर्सन कि हाँ ठीक है, उसमें आप ईज़ देखते हो, कम्फर्ट देखते हो, सही है? और ये मेरा अगला और लास्ट सवाल भी था कि जो मुझे डिस्कस करना है। बट देन यू नीड टू डिसाइड कि अगर किसी बंदे को इससे खुशी मिलती है कंपनीज़ चेंज करने से और किसी को इससे मिलती है, दैट्स टोटली फाइन। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को देखो। अ, इट्स आई पर्सनली बिलीव कि आपके हाथों की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, बट हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है, अगर आपको सही लग रहा है तो वो भी आपके लिए भी ठीक है। That comes to the last pointer, the last thing that I want to discuss. You being a mother for 2 kids, ठीक है? And I know कि how difficult a life is for women, ठीक है? And I'm not saying मैं वो फेमिनिज़्म वाली बात नहीं कर रहा। I'm just saying कि भाई ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आप लोगों को करनी होती है, जो मर्दों को नहीं करनी होती, ठीक है? That comes to responsibilities of your ex-in-laws, of your family and of your husband, ठीक है? And I'm pretty much sure आप भी उतना ही कर रहे हो तो, ठीक है? What do you think in coming throughout your coming experience, ठीक है? आपको क्या लगता है कि यार इज़ इट समथिंग जो कि कंपनीज़ दे रही होती हैं ईज़ इस चीज़ में? आप किस तरीके से उसको सेट करते हो? आई एम प्रीटी मुश्योर आपको एक कैलेंडर तो होगा ना, क्योंकि आपको हर चीज़ पे एक स्पेसिफिक टाइम देना है। आप ओवरलैप करते होगे लेकिन आपको पता है कि यार आज काम है। जैसे अभी आपने बोला कि इफ योर कंपनी इज़ सेइंग कि ठीक है ट्रैवल विद योर किड्स एंड यू आर नॉट बिकॉज़ यू नो कि Yeah. दिस इज़ द टाइम Yeah. जहाँ पे मैं काम करूँगी, I saw my kids' comfort. ठीक है? दिस इज़ माय Yeah. टाइम जहाँ मैंने अपनी फैमिली को Yeah. टाइम देना है, ठीक है? Yeah. येस अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि शादी के बाद जो है वो 9 टू कोई काम नहीं करना होता और हाउस वो भी सही है, किसी को ये पसंद आता है। बट बीइंग एज़ अ मदर ऑफ 2 किड्स, हाउ हार्ड इट इज़, ठीक है? डू यू थिंक यार आपको मुश्किल आता है? आपने आपने क्या क्योंकि आप शुरू से आपको आपको हर चीज़ आपको हर इवेंट में करना है एंड देन लाइफ गिव यू रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी-थोड़ी, ठीक है? फिर आपको पिवट करना होता है अपने हिसाब से। हाउ दिस चेंज यू ओवरऑल एंड एनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोगों को बोलना चाहोगे कि यार ये चीज़ों को करो तो आपको आसानी हो? यार जब आप लोग शादी करें ना, तो देख कर करें क्योंकि क्या क्या देख के क्या देख के करनी है मैं ये जानना चाहता हूँ? मतलब क्योंकि देख के क्या करनी है?
Yeah, देखिए when I was about to get married, there was literally like a checklist with me where I had these boxes and my husband had to check all of them. It's a love marriage or it's a arranged marriage? Well, the point is not everyone has that. I Let me tell you, no, no. So see, that's important. You can't vibe with a person who doesn't match your expectations. That's a red flag right there. So what I'm gonna say is that you need to have an understanding with your partner about what is it that you both are looking for. And I understand that kids at that time look like it looks like as if it's a future ka topic, but it's not future ka topic. You need to know how you're gonna live, how you're gonna be with kids, when do you want kids, where do you want kids to go to school, all of these things. I had it all noted down. I don't know. I don't even feel sorry for the fact that मेरे पास एक पूरा plan था. Even before I got married, I had a plan for my kids. That's how I'm like. That's how. I mean, I wanted to be a mother so bad, maybe, or I don't know. But but yeah, you need to discuss this with your partner. And I had literally told my husband that this is what I want for my kids. At least for the start, I want their foundation to be amazing, to be strengthened, to be so strong कि अगर इन 5, 6, 7 सालों में मैंने सिर्फ़ इनके साथ टाइम लगा दिया ना मैं, उसके बाद they wouldn't need me. Of course, they need me, but at least foundation-wise, they wouldn't have any issues. Behavior-wise, they wouldn't have any problems. They would be sure about what they want to do, not work-wise, but generally, it was important कि foundation create हो, ठीक है? So similarly, when this came about, I also asked him that it's not gonna be just me raising the kids. It's a partnership and it can't happen single-handedly. And Alhamdulillah, it's been amazing so far. Whenever I'm not in town, it's my husband who takes care. If there's a pickup or drop off to be done, he's there. When he's traveling, I'm taking care of it. Not just this, while I am there with kids, doing all the pickups and drop offs, being with them, doing all the classes and all. In the evening when he comes back, those are his kids. I have nothing to do with them. So if you could just divide the responsibilities. If I'm doing khana, he's doing playtime at that time. If he's doing khana, I'm fixing something or the other with them, like Lego bricks and all of it. So हमने अपने टाइमिंग्स इस तरीके से बांधे हैं ताकि बच्चे बच्चे भी निग्लेक्ट नहीं हो रहे हों और हमारे काम और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इग्नोर नहीं हो रही हों. So if you have that kind of understanding with the person you're about to get married, go ahead, get married. But if you don't, if you feel like नहीं यार ये तो यहाँ पे तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा होगा, I'm too much in love, so I'm sure, I mean, you will face difficulties and you would be putting yourself in trouble. This said, I also have a feeling that I should add this, that if you're already in a relationship, you have gotten married and you have kids, you can still join you can still join back work. If you've been working before, if you had worked before, you can still return to work. It is very important that you earn, you be financial independent, that you make something of yourself, you contribute to the world. It is so essential, so important. You have no idea how different you would feel. I can't even explain it. When I joined back work after my kids, I thought मेरे बच्चे बहुत clingy मेरे बगैर कैसे रहेंगे? क्या करेंगे मेरे बगैर, अपनी माँ के बगैर? भाई, I was surprised when I was running this digital learning festival मैंने कराया. I because before that I was very hesitant. But as soon as I was engrossed in it, I saw that both my kids were playing with each other without fighting. They were so busy with each other, they didn't need me. I also felt for a time I was like I was jealous. I was like ये इनको तो अपनी माँ ही याद नहीं आ रही है. So, अल्लाह ने चीज़ें इस तरीके से बनाई हुई है माशाल्लाह से कि हम शायद कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा फ़िक्र कर रहे होते हैं व्हिच वी डोंट नीड टू डू एंड थिंग्स जस्ट unfold in such a manner where I was surprised to see कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हुए उस टाइम पे. मेरे बच्चों में मैंने इतना अच्छा सा चेंज देखा एंड I was just and that's the reason why I decided. I was like, if they can do this while I'm working online, why can't they do it when I'm also, visiting, traveling, commuting from here to there?
एंड इट्स अमेजिंग बिकॉज़ मेरे बच्चों की तरबियत भी एक वर्किंग मॉम के बच्चों वाली तरबियत हो रही है अब इस टाइम पे। दे आर मोर रिस्पांसिबल आई हैव सीन। दे नो व्हाट टू से व्हेन एंड they know about HR departments में they know about training and development. So you know जहाँ पे उन्हें पढ़ाई के एक्सपोजर स्कूल से मिल रहे हैं वहाँ पे उन्हें वर्क प्लेसेस के वर्क करने का तरीक़ेकार, मेरी इंडस्ट्री के बारे में बातचीत, अपने बाप की इंडस्ट्री के बारे में बातचीत के बारे में पता चल रहा है एंड इट्स अमेजिंग टू नो व्हाट दीज़ यंग किड्स दे नो नाउ। सो ना सिर्फ आपको अपने में चेंज दिखता है बट बल्कि बच्चों में भी चेंज दिखता है। आपकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली हो जाती है। आपको मासियों से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अपनी सास से, आपकी अपनी जेठानी से और जो भी वो बहुत सारे थिंग्स होती हैं घरों में सारे मसले जनाब के हल हो सच जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं क्योंकि अम, आप बिज़ी हो जाते हैं। ये आपसे पूछ मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि नहीं यार मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ बहुत है, अब मैं काम नहीं कर सकती। मैं कैसे करूँगी 9 टू 5 एंड देन आई वांट टू नो कि देखो देयर इज़ अ सीओओ ऑफ अ कंपनी, इफ शी इज़ डूइंग इट एनीवन कैन। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यू हैव ऑल द राइट्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की अपनी शादी से पहले कोई डिमांड रखती है तो ठीक है, वो घर छोड़ के आ रही है। जिस दिन लड़का घर छोड़ के जाएगा लड़का डिमांड रखते कि भाई ठीक है तुम गोल रोटी बनाओ। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इट्स अ 50-50 सेट। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करा है, 5-4 साल पढ़ा है, फिर काम करा है, शादी के बाद वो चीज़ छोड़ना है। आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल होनी चाहिए। आप जहाँ जाएँ, you don't people don't see you like meet dash Mrs. dash dash dash. Why don't people say कि this is Sara Mashood? ठीक है? And also to understand कि बच्चे हर किसी के पल रहे हैं। मतलब हमारे पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि नहीं यार हमारी अम्मा है। भाई जो लोग यहाँ पे लैम्बोर्गिनीज़ में उनके बच्चे भी पल रहे हैं, जो कि मेट्रो में आते हैं उनके भी पल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से ट्रेन करा हो। और दूसरा ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है जब आप एक वर्किंग मदर एंड वर्किंग फादर के बीच में पैदा होते हो ना, तो आपको पता चलता है ठीक है डिसिप्लिन है, देयर इज़ अ बार। तब आपको बताना नहीं पड़ता अपने बच्चों को कि 10 बजे आपको घर वापस आना है, उनको पता है क्योंकि मेरे अम्मा-अब्बा ही सो जाएँगे, जब वो सो जाएँगे, जब वो उठेंगे ही नहीं तो मैं घर कैसे खुलवाऊँगा? एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स सो ये दिस इज़ Yeah, yeah, द थिंग। for sure. सो व्हाट आई पर्सनली लर्न फ्रॉम इट कि यार एक्सक्यूज़ सच है कि आपके पास प्लान हो, एग्ज़ीक्यूशन अल्लाह ताला के ऊपर है इंशाल्लाह अगर आपका प्लान होता है तो एग्ज़ीक्यूट होता है। बट एक्सक्यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क इज़ के एनी एनी 3 पॉइंटर्स, एनी 3 चेकलिस्ट यार आपको ये लगता है कि बिकॉज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि पैसा, फैमिली, एवरीथिंग कैन बी डन क्योंकि वो आपके हाथ में है, सही है। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि यार मैं हर साल अपने आप की ना एक इवैल्यूएशन करता हूँ कि ठीक है, पिछले साल मैं ये था, इस साल मैं ये हूँ। और उनकी चेकलिस्ट होती है। सो व्हाट शुड बी Yeah. इवैल्यूएशन कि जब आप हर साल बैठे हों, ठीक है, आपको किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम? कोई 3-4 चीज़ें अगर आप बताना चाहो क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप अपने लिए तो कर रहे हो, आप लोग फैमिली के लिए भी कर रहे हो, बट हाउ डू यू सी कि ठीक है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे, नहीं जा रहे? कौन-सी 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कहते हो कि यार लोगों को ये काम ज़रूर करना चाहिए ताकि वो एक पाथवे पे सही चलते रहें? यार अच्छा ये मुझे यूजुअली होता है कि लास्ट मैसेज वाला सीन होता है बट दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई वांट पीपल इन फैक्ट आई फॉर मायसेल्फ आई वुड से एवरी टाइम यू आर इनवाइटेड टू अ प्लेस, गो अप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Every time you see an event happening, go there. And don't just go there, but make a mark there. That's number one. Number two is that you collaborate with people. While you're networking, there are a lot of things that two people can do together, multiple people can do together, right? So you should always look for collaboration and make that happen. That's been my mantra for this year, and I think I've been enjoying it so far. And I put it up on LinkedIn as well as my post, and I got a lot of collaboration through that as well. So that's another. Number three is whoever you meet, whatever you do, don't forget to learn. Learn something or the other. किसी का आपको बात करने का तरीका अच्छा लगेगा, किसी को आपकी एनर्जी बहुत पसंद आएगी, किसी
उसको आपकी पॉजिटिव बातें बहुत अच्छी लगेंगी। सो आई मीन देयर कुड बी एनीथिंग और उसको अपनाने की कोशिश करें। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कॉपी इट, बट लुक फॉर अ रीज़न एंड यू कैन आल्सो ऑलवेज़ लाइक नेटवर्किंग के बहुत सारे लोग रूल्स पूछ रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं कि कैसे करें। When you see these things in a certain person, you can also compliment them and start a conversation. So I think these are the three things that one should do, and don't forget to have fun while you're at it. Perfect. I think we have discussed a lot of good pointers, Sarah. It's my pleasure to have you on this session. I'm pretty much sure a lot of Like, people learn from this. So thank you so much for your time. I'm pretty much sure अगर किसी बंदे को आपको रीच आउट करना होगा, they can reach out to you. Just for the audience, reach out with a proper message. हाय हेलो के मैसेज पर जवाब कंसिडर करना बहुत गलत बात है. राइट अ प्रॉपर मैसेज, क्या चीज़ है, क्या बात करना चाहते हैं. I'm pretty much sure everyone जिस चाहिए जगह क्या? but there बात should क्यों be करनी है? there should हाय be हेलो बिल्कुल नहीं। there should be a specific reason. But I'm very happy that we have this session and a lot of people will learn from it. So thank you so much for your time. Thank you so much, Amar.